Department of Language and Literature at Hatwari University. I'll be hosting today's session. These sessions are basically designed to inform and give the students a clear perspective of what to choose, how to choose, and why to choose. These sessions will also give an entire picture of what Hatwari University works as, the programs it has to offer, and the scope of those programs. In this session, our guest panel will be from the Faculty of Textile and Design. Without further ado, I would like to inform you that the admissions are open in Hatwari University and you can apply for the undergraduate program in this department. So make sure that you apply before the deadline. Hatwari University is amongst one of the leading universities of Pakistan. It is recognized by the government and chartered by HEC. HU alumni are serving the nation across Pakistan and world over. HU offers programs in academics ranging from pharmacy, DPT, media, textile, fashion and design, language and literature, computer sciences, and many more, just to name a few. HU is a place of learning and research from undergraduate all the way up to doctoral degree programs in several multidisciplinary fields of knowledge. Here at HU, we have highly qualified faculty who not only resolve your issues but also help you in effectively achieving your goals and professionalism. HU also has many different student society bodies in which students can partake, and they have different activities which are conducted over the time. This not only helps the students to excel in extracurricular activities, but also makes them to realize and bring about and polish their skills, like they can, inculcate and bring more knowledge to what is self, their knowledges, their weaknesses, their skills, and even their strengths. Through these society and the activities which are held, the students can convert their weaknesses into their super strengths as time goes on. In this session, we will talk about HU, Faculty of Textile and Design. Ladies and gentlemen, let me introduce you to our today's session panel personnel. Ms. Hareen Farooq, Faculty Member HU, Textile and Design Department. Ms. Maliha Mazhar, Faculty Member of HU Textile Department and Textile Designer at the Origins. Mr. Usman, who is an HU alumni, silver medalist, and currently working as a textile designer at Wardha. So welcome all of you to our today's discussion panel. So there are a few questions that I would like to ask you. Sure. Now, can you just give me an overview and a brief introduction to what and how HU Faculty of Textile Design functions? मेजरली टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में हम यहाँ पर हिजवेरी यूनिवर्सिटी में सब कुछ स्किल बेस कराते हैं ताकि आगे स्टूडेंट्स जो है वो मार्केट में जाके प्रॉपर्ली वर्क कर सके। टेक्सटाइल में जब आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को टच करते हो, डिफरेंट कोर्सेज को टच करते हो, तो आप बहुत सारी और वैरायटी में चले जाते हो और जो आप सीखते हो, तो जब वो स्किल आप मार्केट में जाते हो तो वो और फिनिश फॉर्म में आ जाता है और आप उसको और एक्सपीरियंस करते हो और आप उसको प्रॉपर्ली और अच्छे तरह से समझते हो और लर्न करते हो मार्केट का वे। लेकिन हिजवेरी यूनिवर्सिटी की स्पेशलिटी है कि हम उनको बेस इस तरह से बनाते हैं कि वो मार्केट में जाकर मार्केट का काम करें। हम उनको बहुत एक्सपेरिमेंटल भी नहीं लेकर जाते, स्टार्टिंग हमारा एक्सपेरिमेंटल से होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम उनको प्रैक्टिकल वर्क पे ले आते हैं ताकि वो मार्केट में एक अलग स्टैंड करें, उनको जाकर दोबारा से शुरू से सीखना ना पड़े, उनको बेसिक पता हो, उनको डिटेल्स पता हो, जिस तरह से मार्केट में काम हो रहा है और आगे से सारा प्रोसेस करते रहे। Ms. Maliha, I have a question for you. Can you kindly give a kind of a suggestion or advice, as you would like to say, to the students who aspire to become textile designers? Can you please tell them how they can pursue their career or their goals? सबसे पहले तो एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर को डिज़ाइन की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसकी वोकैबुलरी इतनी होनी चाहिए, उसको आइडियाज़ की एग्जीक्यूशन आती हो, उसको पता हो कि टेक्सटाइल्स बेसिकली क्या है। ठीक है, हम नॉर्मल टर्म्स में टेक्सटाइल की कैटेगरी में पुट इन करते हैं इंटरलेसिंग और इंटरडूपिंग को, कि सिंपली हमने वीविंग कर लिया, हमने निटिंग कर ली, तो दैट इज टेक्सटाइल। लेकिन विद टाइम जैसे चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, ठीक है, इसी तरह से जो टेक्सटाइल है उसकी टर्म, उसकी जो डेफिनेशन है वो चेंज होती जा रही है। अब सिर्फ कपड़ा बनाना टेक्सटाइल नहीं है, ठीक है, फ्रॉम कह लें इंस्पिरेशन
टिल एग्जीक्यूशन जितना काम आता है वो सारा टेक्सटाइल की कैटेगरी में आता है। आप डिफरेंट, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, ठीक है, मैंने फैब्रिकेटेड टाइल्स बनाई, मैंने उसमें डिफरेंट एक्सप्लोरेशन ऑफ मटेरियल किया, मैंने उसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल सैम्पलिंग की, दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ टेक्सटाइल्स। हम उसको ये नहीं कह सकते कि टाइल बना दी तो दैट इज नॉट टेक्सटाइल, दैट वाज पार्ट ऑफ सेरामिक्स, ठीक है। सो सबसे पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए टेक्सटाइल के बारे में, उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए डिज़ाइन प्रोसीजर के बारे में, ठीक है। जनरली हम टेक्सटाइल डिज़ाइन में जो एक डिज़ाइन प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो इसी तरह से स्टार्ट होता है कि स्टेप 1 में हम एक इंस्पिरेशन लेते हैं, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग, वो कोई चीज़ हो सकती है, वो कोई फ्लावर हो सकता है, कोई फ्रूट हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है। देन हम उस पर रिसर्च करते हैं, ठीक है। सो रिसर्च इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। सो रिसर्च आपको करनी पड़ेगी, प्राइमरी सेकेंडरी जिस भी तरह से आपने करनी है, और उसके बाद हम मोटिव एक्सट्रैक्शन करेंगे और डिज़ाइन के प्रोसीजर को कंटिन्यू करेंगे। मोटिव से हम डिज़ाइंस बनाएंगे और उसको फिर प्रोडक्ट पे लेके जाएंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे। तो आई थिंक इस पूरे डिज़ाइन प्रोसीजर की नो हाउ एक स्टूडेंट को, एक डिज़ाइनर को होनी चाहिए। उसको करंट जो ट्रेंड्स हैं, कटलाइंस हैं, उनका आइडिया होना चाहिए। इस बेस पे वो आगे भी बढ़ सकते हैं, वो आगे भी जा सकते हैं और वो बेहतर काम जो है वो ब्रांड्स को या फिर यूनिवर्सिटी में ही अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिले तो आप एक अच्छा काम जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हो। Maliha, now I would like to ask you another question, that how does Hajweri University prepare its students to become better professionals out in the field compared to the other counterparts? अगर हम बाकी यूनिवर्सिटीज़ का कंपैरिजन करें हजवेरी यूनिवर्सिटी के साथ, तो हजवेरी यूनिवर्सिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया टेक्सटाइल डिज़ाइन की हम बात कर रहे हैं, हमें लैब्स भी चाहिए, हमारा प्रैक्टिकल काम भी है, हमारा थ्योरी बेस्ड काम भी है, हमें मटेरियल एक्सप्लोरेशन भी करनी है, ठीक है। सो अगर हम बाकी यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर करें हजवेरी यूनिवर्सिटी को, तो हजवेरी यूनिवर्सिटी आपको बहुत सारे जो है डिज़ाइन अपॉर्चुनिटीज़ वो प्रोवाइड कर रहा है, आपको आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हजवेरी यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट्स हैं वो उनको सबसे कह लें पहले जॉब्स मिलती हैं एज कम्पेयर टू बाकी यूनिवर्सिटीज़ के, उनकी पोर्टफोलियो के बेसिस पे, उनकी काम की बेसिस पे और इस बेस पे कि वो कितनी अच्छी तरह अपने काम को डिफेंड कर सकते हैं। Now, Usman, coming back to you, I have a question for you. Can you kindly please tell us more about yourself, your current occupation, and what you've studied at HU? Thank you, Ms. Mehak, for asking me. I have done my graduation from Hajweri University in 2016. Currently, I'm working with Varda as a creative designer. Last but not the least, Usman, can you kindly share your experience in HU and one of the most memorable moments you had here? हजवेरी के साथ जो 4 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा है बहुत ज़बरदस्त रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारे यहाँ से यादें हैं। जो हजवेरी ने मुझे पढ़ाया मेरी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत काम आया। इन्होंने जो हमें चीज़ें पढ़ाई हैं, उन्होंने हमारी बेसिक रूट्स को, क्रिएटिविटी को डेवलप किया है, कि हमारे डिज़ाइनिंग सेंस और क्रिएशन को उन्होंने हमारे बूस्ट किया हुआ है। जो यहाँ के टीचर्स थे, जो फ्रेंड्स थे, जो एक सर्कल था, जो मेरा सोशल इन्वायरमेंट बना यहाँ पे, वो बहुत ज़बरदस्त लेवल का था। उससे पहले मैं इतना सोशल और ज़रा ठहरा बंदा था, लेकिन यहाँ पे आके डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आए हुए थे, उनसे मिल के उनके साथ एक ही प्लेटफॉर्म में काम करते हुए डिफरेंट मुझे मौके मिले हैं लोगों के साथ काम करते हुए। टीचर्स ने हमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म शो कराए हैं, हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में काम किया, काफ़ी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स थे जिसमें हमें काम किया, हमने अर्न भी किया जरिए ड्यूरिंग स्टडीज़ हमने ये काम किए। आफ्टर completing my degree मुझे एज अ वेल नोन ब्रांड में भी काम करता रहा हूँ, लाइक सच एज रीमा सन एंड सना सफीनास के साथ मैंने काम किया है। हम एक यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ रहे थे डिजिटल प्रिंटिंग का, तो उसमें हमारी क्रिएशन थी, फर्स्ट टाइम क्रिएशन थी, हमने फैब्रिक को प्रिंट सरफेसेस करके डेवलप किया था। तो एक नई खुशी थी जो चीज़ हमने यहाँ पे बनाई थी, तो एक अजीब सी अचीवमेंट होती है हमारे अंदर। तो हमने अपने HOD से ये डिस्कस किया था कि हम अपना जो काम है रैम्प वॉक पे, फाइनल जो एग्जाम है रैम्प वॉक के जरिए देना चाह रहे हैं। तो उन्होंने काफ़ी कोशिशों के बाद उन्होंने अप्रूव किया, एडमिन ने भी और HODs ने भी। तो हमारा जो फर्स्ट फैशन रैम्प वॉक जो हमने करवाई थी ऑर्गेनाइज, वो बैच 13 थी, हमारे बैच था जो ने ऑर्गेनाइज करवाई थी यहाँ पे। Thank you so much, our respected faculty members and our alumni for joining our panel discussion today. So it was a great experience having, sharing your expertise with us and your experiences with us, and hopefully this will help the future
students who want to excel in this, type of field and want to take it up as a career. So the students who are listening to us right now, definitely I would advise you to, make it quick and by leaps and bounds, get yourself registered and get an admission in this department and let your inner fashionista out. Experiment with colors, threads, and fabricate your own reality and perceptions into a world of bliss and colors. That's all from my side. Thank you so much for joining us. Have a nice day. Allah Hafiz.